स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने VB.NET में if else लॉजिक और select केस यानी जिसका एनालॉगस C प्रोग्रामिंग में स्विच केस है वो चीज़ें डिस्कस की थी. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स in decision making, I mean to say if else we discussed and then select case or switch case in equivalent is switch case in C programming. Now अभी अगर हम बात करें लूप्स की, VB.NET में लूप्स का सिंटेक्स और क्या क्या टाइप्स के लूप्स है. सबसे पहले फॉर लूप is one and there is while loop and also do loop. So there is for loop, while loop and do loop or do while. And also one more version, one more variation of for loop is there, that is called for each loop. For each loop. Okay. Let's start with for loop. अभी लूप्स क्या होते हैं, लूप्स का मतलब लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नेसेसरी क्यों है लूप्स, ये सब तो आप जानते ही है क्योंकि सी प्रोग्राम पढ़ी आपने C++. सो लूप्स क्यों यूज होते हैं, वी नीड नॉट टच इट. नाउ सिंटैक्स पार्ट इज इम्पॉर्टेंट हियर. नाउ फॉर लूप की अगर बात करें in C programming, the syntax is like this. Please check. The syntax is for index equal to start to end. Square brackets वाला syntax optional है, mandatory नहीं. Statements जो भी for loop में होंगे, you can exit for in between if you want. C program break हुआ करता है, break statements and then next. Okay, यानी for loop का syntax है, for loop in VB.NET needs a loop index which counts the number of loop iterations as the loop executes. Syntax is for index equal to start to end. Some step that is optional. By default the step is 1, or you can have a loop of 2 steps in one iteration, that is step 2, step 3, sometimes step can be -1 as well, negative statements and next. For index equal to start to end and next. For index equal to start to end and next is the mandatory part of syntax, other syntax is optional. You can exit for in between at any iteration. Let's see this example. We have a program module here. The program is for d is declared as an integer, d equal to 0 to 2. By default step count is 1. So system.console.writeLine in the for loop 0 1 2. This loop will be executed 3 times. 0 1 2, 0 times 0. When d is 0, then d will be 1 next iteration, and 2. When it's 2, the control will come out. Next d or next. यहाँ पर आप खाली next भी लिख सकते हैं या next और index का नाम, दोनों चीज़ें acceptable है. So for loop का syntax क्या है? For let's write a program. यही वाला प्रोग्राम हम C में लेते हैं, इसमें VB.NET में, and check what will happen. Let's copy this code in the code editor of VB.NET, that is Visual Studio 2019 जो हम यूज़ कर रहे हैं. Visual Studio 2019 visit. Install भी हाँ is here. ओके, तो लूप्स का लॉजिक
नहीं डिस्कस करना है, हमें पता है लूप्स क्या होते हैं क्योंकि हमने सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में, फ्लो चार्ट्स में ये सब चीज़ पढ़ी है। अब हमें कंसंट्रेशन करनी है VB.NET के सिंटैक्स पर कि लूप कैसे इम्प्लीमेंट होगा VB.NET में। We are creating a new project here. Take some time. More than due time. Okay, no problem. Let's wait. Actually, .NET Visual Studio 2019 जो एडिटर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, थोड़ा हैवी है, प्रोसेसर इंटेंसिव है, मेमोरी इंटेंसिव है, सो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी होनी चाहिए तो आराम से चलेगा। बाय द वे मेरे कंप्यूटर में रैम 8 GB है एंड प्रोसेस Core i5, but it takes time. It's a heavy editor, heavyweight editor. Last time I used Visual Studio, it didn't take so much time. Okay, no problem, we'll wait. So we're here. अभी हम यहाँ पे थे, for loop. Oh, yeah. Okay, this was the program. ये वाला जी, this one we discussed. थोड़ा सा इसको कोर करें ताकि आप खुद भी ये प्रैक्टिस कर पाए। देखिए फॉर का सिंटेक्स, सबसे पहले कोई इंडेक्स वेरिएबल होना चाहिए। फॉर आई इक्वल, जैसे सी में हम कर देते फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल टू सपोज 10, आई प्लस प्लस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 टू start and you have to mention step count is optional. By default step count will be, increment will be 1. System.console.writeLine in the for loop next, and this d, writing d here is optional, we can simply write next. Okay, there is no I plus plus sort of thing. Default increment is 1. If you want to add some increment here, you have to try it here. Step pose -1, step 2, 3, whatever. Okay, 3 times this loop gets executed. We want to create a console application, but our language will be Visual Basic. Console application without any interface, without any Windows forms or graphical user interface. Okay. Let's try this one. Console application on simply .NET framework. Okay. Console app 2 by default name, you can write it anything. Location is here. Solution is stored here. Frameworks, .NET framework console. Let us do a test. You can use, for this very simple example, it will be supported in all .NET versions. No need to worry. Okay. By the way, this solution is what? Collection of projects, you can say, is a solution. If you have one project, then it's project, and one project, one solution. If you have many projects, you can add, once you create a solution, you can add for the Visual Basic Visual Studio editor, you can add many projects to one solution. So let's create one project. Okay. Just taking some time. Okay. ये इसका सिंटेक्स है पहला। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा मॉड्यूल है यहाँ से यहाँ तक हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपली से कॉपी पेस्ट करते हैं अपना कोड। ओके,
system dot console dot write line in the for loop. Okay. System is a namespace, console is a class in that namespace, and write line is a static or shared function in that class. So if you want to use console instead of कंसोल ओनली, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कैसे, क्या लॉजिक क्या है इसका, कैसे यूज़ करना है कोई भी डॉटनेट मदर क्लास या कोई भी क्लास. जैसे विल राइट imports system. Namespace is by the collection of classes here in your context. So system namespace जब हमने import किया तो उसमें जितने भी क्लास है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम कंसोल क्लास ये इंपोर्ट हो गया. अब यहाँ पर सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी डू नॉट नीड टू प्रीफिक्स कंसोल विद सिस्टम हियर इफ वी इंपोर्ट सिस्टम एट द टॉप. कन्वेंशन है कि you do import this system or any other namespace that you are going to use in your .NET class or whatever .NET class. Now, if you are sure that you will be using only console class here, you can simply write import system.console. Then you will write your code simply write line आप लिखेंगे तब, ठीक है, तब आप खाली write line लिखेंगे. ठीक है, by default ये console class import कर ही लेता है, but you can also mention here import system.console. exactly अब हमने ये क्लास इंपोर्ट की तो यहाँ पर डायरेक्ट राइट लाइन का. तो what will follow this much nomenclature and yes this one ये convention. We will write import system or any other namespace then classes जो भी होंगे वो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर. कंसोल क्लास राइट लाइन ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. देखिए अब फॉर लूप, चलिए एक बार डिलीट भी कर लेते हैं. फॉर लेट्स मेक इट सिंपल I as integer. For I equal to 1 to 5. इंटेलिजेंस इज दिया. सो 1 to 5 मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर नेक्स्ट ऐड हुआ, खुद हुआ. ये इस फॉर लूप की बॉडी है. इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है वो फॉर लूप में एग्जीक्यूट होंगे एज पर द फॉर लूप लॉजिक. सो सिंपल सा सिंटैक्स है. फॉर आई इक्वल टू सम इनिशियल स्टार्ट वेरिएबल टू स्टार्ट टू एंड आई इक्वल टू 1 to 5. ये लूप एग्जीक्यूट होगा एग्जैक्टली 5 टाइम्स. अगर मैं अब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन I equal to 0. I, ठीक है, ये सिंटेक्स है. I इक्वल टू प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर डॉट नेट में इसमें सिंटेक्स में कैसे, ये कर्ली ब्रेसेस 0 यानी अगर एक प्लेस होल्डर है तो 1 कामा 1 2 3 जितने भी होंगे. अभी हमारे केस में एक ही है, एक ही वेरिएबल है. तो I इक्वल टू 0 पहली बार I इक्वल टू 1 प्रिंट होगा, दूसरी बार I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 3 4 5. जैसे आप सी में लिखते थे प्रिंटफ %d प्लेस होल्डर होगा कामा वट एवर जो भी वेरिएबल था I. ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना, कंसोल डॉट राइट लाइन I इक्वल टू प्लेस होल्डर. एक प्लेस होल्डर पहला यानी 0, उसके बाद I इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1 वट एवर जितने भी प्लेस होल्डर्स होते, ठीक है, वो आप करते. ठीक है, I इक्वल टू 0
सपोज अगर इस लूप में जे भी होता एंड जे इक्वल टू 0 के बदले यहाँ पर 1 कामा यहाँ से आपको लिखना था आई कामा जे। ओके, दूसरा सिंटेक्स इसका है जैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ये है कंसोल, ये हमने लास्ट टाइम ऐसे डिस्कस किया था। राइट लाइन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई इक्वल टू concatenate करो एंड आई। दिस इज ऑल्सो वन मोर सिंटेक्स, दोनों सिंटेक्सेस एक्सेप्टेबल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऊपर वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल कॉमा जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया इससे कमेंट लाइन कहा जाता है, ये लाइन कमेंट हो गई। अब जाके हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, बिल्ड हो रहा है प्रोग्राम, अगर एरर है तो नहीं बिल्ड होगा। हाँ, बिल्ड सक्सीडेड। ओके, आउटपुट दिखाया लेकिन फास्ट। लेट अस होल्ड स्क्रीन, कैसे? कंसोल डॉट रीड लाइन से, जैसे आप सी में गेट की करते थे यूज़, अगर आपको याद हो तो। कंसोल डॉट रीड लाइन किस किस काम आता है, कैसे इनपुट लिया जाता है, जैसे कंसोल डॉट राइट line is your equivalent to printf, console.readline scanf, something sort of like that. ओके, फिर से हम ये कंपाइल या बिल्ड करते हैं। i equal to 1, ओके, y ओके, i equal to 2, i equal to 3, i equal to 4, i equal to 5। एक्चुअली ये एंटर पर क्यों हो रहा है ये प्रोग्राम कंट्रोल, क्योंकि हमने जो कंसोल डॉट रीड लाइन वो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट इंसर्ट की, दैट इज़ व्हाई इट्स हैपनिंग। तो एक्चुअली हमें लास्ट में स्क्रीन होल्ड करना है, वो हम ऐसे करेंगे, कट कंट्रोल एक्स चलता है यहाँ पर, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के कीबोर्ड से वो चलेंगे। कॉमन शॉर्टकट्स लाइक कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वर्ड में भी जो यूज़ होते वो चलेंगे। तो ये था जो हमें स्क्रीन होल्ड करना था, वो हमें लास्ट में करना है। अगर हम यहाँ पर करते हैं, जितनी बार आई चलता है, लूप चलता है, उतनी बार स्क्रीन भी रुकेगा, बट वी डू नॉट वांट दैट। ये मैंने कहा था ये एक सिंटेक्स है। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी आपकी मर्जी, आपको कौन आसान सिंटेक्स लगता है। कमेंट है, कमेंट लाइन कमेंट कर दिया, फिर से आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके बाद लास्ट में कंट्रोल फॉर लूप के बाहर कंट्रोल आ जाता है और वी स्टॉप इट लाइक दिस। ओके, अगर आपको इनर और आउटर लूप करना है तो आप ऐसे करेंगे, आई कामा जे एज इंटीजर, बाय डिफॉल्ट इंटीजर्स आर सेट टू 0। तो उसके बाद फॉर जे इक्वल टू 1, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं। 5 स्टेप काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, लेकिन हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। स्टेप 2, अगर आप चाहते हैं दो जंप्स हो एक इटरेशन में, दो इटरेशंस का, ठीक है। इंक्रीमेंट 2 हो, i इक्वल टू i प्लस 2 इक्विवेलेंट है c में, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये वाला यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, कंसोल कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, J इक्वल टू
देखिए लूपिंग लॉजिक क्या होता है वो आपने बहुत बार अभी तक पढ़ा है, सी में पढ़ा है, C++। सो अब आप सिंटेक्स पढ़िए, ठीक है, सिंटेक्स पर फोकस करिए। फॉर j इक्वल टू 1 to 5 यानी सी में इक्वलेंट होगा फॉर j इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल टू 5, j प्लस प्लस लाइक दैट। प्रिंट एफ j इक्वल टू परसेंटेज j, उसका इक्वलेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, और यू कैन यूज दिस सिंटेक्स कंसोल डॉट राइट लाइन j इक्वल टू एम्परसेंट j, डबल कोट्स में आई को पहले रखना है। तो कनकैटनेट स्ट्रिंग्स को और वेरिएबल और कांस्टेंट स्ट्रिंग को ऐसे किया जा सकता है, या आप प्लेस होल्डर ये यूज कर सकते हो। j इक्वल टू 0, आई राइट लाइक दिस, या आई विल मेक इट मोर, लेट्स ट्राई i इक्वल टू 0, थोड़ा सा स्पेस, एंड j इक्वल टू 1 प्लेस होल्डर, दिस इज कामा i कामा j। ये सिंटेक्स मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, आसान है लिखना, आपकी मर्जी, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर भी i प्रिंट हो रहा है। अगर हम ऐसे अभी इसको कमेंट करें तो आप देखिए आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का। पहली बार j i है 1 है, j 5 बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये स्टेटमेंट्स 5 बार, फिर कंट्रोल बाहर, फिर i2 फिर से ये 5 बार, फिर i3 फिर से ये वाला इनर लूप 5 बार, फिर i4 इनर लूप फिर से 5 बार, फिर i5 इनर लूप फिर से 5 बार, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड इज 25। लेट अस चेक इनर लूप। देखिए i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, बिकॉज i outer loop, j is inner loop, I equal to 1, j is 3, I equal to 4, j is 4, I equal to 4, 1, j is 5। एक लूप कंप्लीट हुआ। अब i2 और j फिर से रीसेट अप टू 5, i3 j 1 2 3 4 5, i3 i4 j रीसेट होगा 5 बार, फिर से i5 फाइनली i5 and j is also 1 2 3 4 5, and this loop inner as well as outer loop terminates. So try these programs. This was about for loop, syntax part, logic हमने बहुत बार अभी तक पढ़ा है, तो hope कि you understand what I mean to say। अभी हमारा है while loop और do while loop, that will be doing in next lecture। Please try these examples yourself। for loop, while loop दिखा रहा हूँ आपको syntax कैसा होगा। देखिए what will be the output of this program now। for I equal to 3 to 6, for j equal to 10 to 12, 0 asterisk 1 placeholder is equal to 2, I into j। मल्टीप्लिकेशन है, किसका मल्टीप्लिकेशन? 3 का, 3 से 6 तक, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 3, 3s are 3, 4s are like that। Let's try। देखिए ये वाला प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करें क्या आउटपुट आएगा, लेट्स चेक। आप ये खुद भी ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, कंट्रोल V, ओके। लेट्स ट्राई। फॉर i इक्वल 3 to 6, आउटर लूप, इनर लूप है j इक्वल 10 से 12 तक। कंसोल डॉट राइट लाइन 0 एस्ट्रिक सिंबल 1 प्लेस होल्डर इक्वल टू 2, i मल्टीप्लाइड बाई j। लेट्स ट्राई। कॉपी निकालना, ये प्रोग्राम पहले देखना। सो ये 3 का टेबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन कब तक? 3 10s are 3 11s 3 12 खाली, 4 10s 4 11 4 12, 5 10s 5 11 5 12, 6 10s 6 11 6 12। आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके 3 का टेबल, 4 का, 5 का, जितने भी टेबल्स आप चाहें मैथमेटिकल टेबल्स वो आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम ऐसा कुछ करें, ये हमने यहाँ से रखा 2 2 4, चलिए 2 to 3 पहली बार, j इक्वल टू 1 to 10,
अब देखिए क्या होगा, लेट्स चेक। टू का टेबल पूरा 10 तक, फिर 3 का टेबल पूरा 10 तक। तो ऐसा आउटपुट कैसे बनेगा इनर और आउटर लूप में, ये हमने देखा। तो इन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, खुदा हाफिज। इसमें अभी एक और लूप पढ़ना है, दैट इज फॉर ईच लूप, और चेक इट नेक्स्ट टाइम। चलिए खुदा हाफिज, बाय बाय।